So this is the 1-year-old KTM 390 Adventure. So in this video I'm going to discuss in detail whether you should buy this bike and what are the pros and the cons of this bike at this price range. So without further ado, let's get into the video. Let's start with the design of this bike. Obviously this bike looks massive. The road presence of this bike is damn good. The bike look very bulky from the front and which goes all the way to the tail. Looking at the front, you will have a partial image of the Duke 390 and this is a daytime DRL and आपको यहाँ पे LED headlight मिलती है. थ्रो काफ़ी अच्छा है बट ऑन द हाईवेज जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है उतनी अच्छी आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती है. You need to get an extra light and also you get a manual adjustable windscreen which you can adjust through this screw manually. You get suspension which is upside down obviously, which is from Apex, and the performance of this suspension is really nice. Stability on the off-road and on-road are very good. You won't feel much kind of bumps on your body while doing off-road. Coming to the tire sections, you get a 119 tire which is a tubeless and you get a alloy wheel over here. आपको Metzeler के on-road and off-road टायर मिलते हैं. तो अगर यहाँ पे 21 इंच के अगर व्हील मिलते तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता, because 21 इंच टायर goes without any struggle on off-road. 19 इंच में थोड़ा सा आपको टैकल आउट करना पड़ जाता है, आपको थोड़ा सा दिक्कतें महसूस होती हैं while doing the extreme off-road. So in the front you will get a 320mm disc plates with Vibri calipers. Performance इसकी brakes की बहुत शानदार है. Talking about the rear tire, 130/80 17-inch tire which is obviously the Metzeler on-road and off-road tires. This is a tubeless tire. You get a Vibri brake in the back as well. You get a switchable ABS. आप switch कर सकते हो ABS को, यानी कि rear ABS आप off कर सकते हो. You get a hard plastic mud guard over here. You get a strong grab handle at the back and tail light आपको obviously LED मिलते हैं with turn indicators LED and you get a side guard over here. चैन स्प्रॉकेट काफ़ी ज़्यादा बड़े मिलते हैं यहाँ पे. Coming to the handle bar, बहुत ज़्यादा टॉल है, बहुत ज़्यादा वाइड है. On the handle you get a lot of switches and यहाँ पे आपको illuminated स्विचेस मिलते हैं. अगर कीज़ की बात करें तो की आपको ऐसा दिखने को मिलता है, जब जैसे आप ऑन करते हो तो रेडी टू रेस लिखता है. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. स्विचेस की बात करें तो यू गेट अ पास upper and dipper switch over here. This is the toggle switch for the instrument cluster. From here you can operate the instrument cluster. आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिलती है. यहाँ पे आपको वार्निंग्स दिखा देते हैं, लो फ्यूल है, साइड स्टैंड लगा हुआ है. मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको ABS मिलता है एंड ऑब्वियसली द क्विक शिफ्ट प्लस. यहाँ पे आप ऑन एंड ऑफ रख सकते हो. आप यहाँ पे ABS भी है, ये ऑन एंड ऑफ कर सकते हो आप. And the best part of this instrument cluster is while doing your ride you can operate these functions very easily. यहाँ पे आपका settings होता है, Bluetooth connectivity है which is used for the turn by turn navigation, the day and the night mode. यहाँ पे शिफ्ट लाइट है, RPM के लाइट्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो. यहाँ पे क्लॉक एंड डेट्स एंड दिस इज द यूनिट्स. आपको डिस्टेंस कैसे देखना है यूनिट्स में बहुत सारे लैंग्वेज आपको मिलता है, ऑब्वियसली हिंदी नहीं मिलेगा. एंड यहाँ पे सर्विस आपकी कब होने वाली है, यू गेट अ एक्स्ट्रा फंक्शन. दिस इज फॉर MTC motorcycle traction control and this is the cornering ABS. So this is whole about the instrument cluster. यहाँ पे आपको रेडिएटर का दिखता है, ये ABS का, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का एंड दिस इज आई डोंट नो ये वार्निंग क्यों शो कर रहा है. एंड यहाँ पे आपको कूलेंट का दिखता है एंड यू गेट अ वेरी ब्राइट TFT स्क्रीन जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है. कैन माउंट योर GPS माउंट ओवर हेयर. यहाँ पे आपको इसको ओपन करके यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा. यू गेट अ 12 वोल्ट चार्जर ओवर देयर, नॉट दैट मच ऑफ यूज क्योंकि USB अगर होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता. ओवर हेयर यू गेट अ किल स्विच एंड हेयर यू गेट अ सेल्फ स्टार्ट बटन. टॉकिंग अबाउट द लीवर्स, यू गेट अ adjustable levers over here for the clutch and the brakes as well. And जैसा कि आप हैंडल बार में देख सकते हो you get a company fitted knuckle guard which is obviously the plastic one but काफ़ी hard plastic है. फ्यूल टैंक की बात करें तो यू गेट अ वेरी मैसिव फ्यूल टैंक बट अनफॉर्चुनेटली इसकी 14.5 लीटर ही कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की एंड दिस इज ऑब्वियसली दिस इज प्लास्टिक. एंड टॉकिंग अबाउट द सीट हाइट ऑफ 855 mm which is obviously in this segment this is the
tallest seat height. You get a very long seat, very soft material seat and very broad as well. थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता लॉन्ग टूरिंग के लिए, शॉर्ट टूरिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा है। पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी है। यू गेट अ वेरी ब्रॉड सीट फॉर द पिलियन एज वेल। एंड ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी पिलियन अगर बैठते हैं तो वो स्लाइड डाउन हो जाते हैं। सो दिस हेल्प्स अ लॉट। इन एडवेंचर टूरर बाइक अगर आपको एक ऐसा सीट मिलता है विच गोज ऑन द टैंक, दैट हेल्प्स यू व्हेन यू आर डूइंग सैडलिंग, क्योंकि जब आप खड़े होते हो तो यहाँ पे आपको नीज होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट मिल जाता है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 200 mm ही है। पता नहीं सीट हाइट बढ़ गया है, बट ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm ही क्यों है, विच कैन बी अ मच मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर द शॉर्ट हाइट राइडर्स जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है या फिर 5 फुट 6 इंच है। उनको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है वाइल डूइंग ऑफ रोड। आपने जांस्का राइड में देखा ही अभिनव को कितने ज़्यादा दिक्कत हुई और 3-4 बार तो फॉल भी हुआ उसका। यू गेट अ एग्जॉस्ट काफ़ी छोटा है बट इट सर्व्स द पर्पस। ऑब्वियसली मैं एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं है। BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आपको एग्जॉस्ट मिलता है, बट ड्यू टू द डिज़ाइन ऑफ दिस एग्जॉस्ट आपको वाटर क्रॉसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। इन द बैक यू गेट अ मोनोशॉक सस्पेंशन विच इज़ मैनुअली एडजस्टेबल। बट टॉकिंग अबाउट द रियर सस्पेंशन, अगर आप ऑन रोड कर रहे हो या फिर टार्मेक वगैरह पे चला रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। बट व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोड तो आपको काफ़ी ज़्यादा बम्प्स फील होंगे जब आप ऑफ रोड करोगे। टॉकिंग अबाउट द इंजन, 373cc इंजन which is obviously the liquid cooled engine which produces 43 bhp power and 37 Newton meter of torque। यहाँ पे racing KTM लिखा हुआ है। dual fan radiator मिलता है which reduces as much as possible heat from the bike। की जो radiator है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। for that Abhinav has put the grill over here। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे vents काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। if you see over here you get a coolant storage box here and you get a fence over here to pass on the heats। आपको बहुत ज़्यादा लोहे के पार्ट्स दिखेंगे जो आपको यहाँ पे विजिबल हैं। यू गेट अ वेरी गुड फुट पैक्स जो कि आप यहाँ पे रिमूवल है, ये रबर रिमूव कर सकते हो आप। ये पिलियन का फुट पैक है। एंड यू गेट अ गियर लीवर। ऑब्वियसली ये पता नहीं ये रबर निकल रहा होगा तो इसने चिपका डाला इसने बट यू गेट अ फोल्डेबल गियर लीवर विच इज़ गुड पार्ट। जब आपकी गाड़ी फॉल करती है तो ये मुड़ जाता है, ये टूटने से बचता है। एंड यू गेट अ वेरी ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग स्टैंड ओवर हेयर विच इज़ ऑब्वियसली द ऑटो कट। जब आपकी गाड़ी स्टैंड में रहती है तो स्टार्ट नहीं होती है, दिस इज़ कॉल्ड द ऑटो कट। ऑन द डाउन साइड यू विल सी अ प्लास्टिक बैस प्लेट जो कि अगर एल्युमिनियम या मेटल का दिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको मेटल का बैस प्लेट छोटा सा मिलता है जो कि प्रोटेक्ट द साइलेंसर पार्ट। यहाँ पे भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नेकेड है ये सारा पोर्शन। ये फर्स्ट जनरेशन KTM 390 एडवेंचर है, सेकंड जनरेशन भी आ चुका है। ग्राफिक्स चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम है, मैकेनिकल फीचर्स सब कुछ सेम है। सो KTM 390 एडवेंचर दिस बाइक इज़ ऑब्वियसली अ हाई टॉर्क मोटरसाइकिल। पावर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होने वाली है, चाहे आप हाईवे पे हो या सिटी में हो। रिफाइंड है, स्मूथ फील कराती है आपको वाइल क्रॉसिंग एनी टेरेंस। You won't feel any stress on the engine because of the powerful engine you get on this bike। जो टोटल वेट है इस बाइक की which is around 162 kg। आपको कभी भी इस बाइक की वेट फील नहीं होगी, या फिर कॉर्नर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंट्रोल्स मिलेंगे इस बाइक पे बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक, वे बाइक हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स वेट, द एरोडायनेमिक्स ऑफ दिस बाइक। यू वोंट लूज एनी कॉन्फिडेंस while you are doing cornering or while you are cruising on the triple digit number। So one thing जो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ उस टॉपिक के बारे में, जो कि हर बाइक में आपको ऑब्वियसली इस रेंज की बाइक्स आपको नहीं मिलती है, विच इज़ द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ दिस बाइक, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो ट्रैक्शन कंट्रोल basically prevents the bike from drifting। जब आप throttle देते हो तो obviously the power goes directly to the rear wheel एंड उस पावर को ये कंट्रोल करती है ट्रैक्शन कंट्रोल। मतलब बेसिकली रोटेशनल स्पीड को कंट्रोल करता है। जब आप ऑफ रोड मोड को ऑन करते हो, ऑफ रोड में हल्का सा ड्रिफ्ट करते हो बाइक को, रियर व्हील स्किड करता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है और चलाने में मज़ा आता है। एंड यू गेट अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड ऑन दिस बाइक यू गेट अ वन मोर फीचर जो आपको इस सेगमेंट की बाइक में देखने को नहीं मिलेगी, दूर दूर तक नहीं मिलेगी इस सेगमेंट की बाइक
बाइक में वो है कॉर्नरिंग ABS। जब आप हाई स्पीड पे कॉर्नर्स करते हो तो स्लाइड्स होने के जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो काफ़ी कम हो जाता है कॉर्नरिंग ABS से, और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है इस बाइक पे जब आप हाई स्पीड में कॉर्नर्स करते हो। जब आप क्रूज करते हो ना हाईवेज पे, तो आपको इस बाइक में क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। क्विक शिफ्टर इज बेसिकली अ मैकेनिज्म इन द इंजन जो कि कुछ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए क्लच को इंगेज करती है, और जैसे इंगेज होता है क्लच तो वो गियर शिफ्ट हो जाता है। सो दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। हीटिंग की बात करेंगे इस बाइक पे तो बेसिकली हीट जो होता है आपके लेग्स पे, ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, बट ड्यू टू द डुअल फैन इन द रेडिएटर यू वोंट फील दैट मच ऑफ हीट। बट एक्सट्रीम सिटी ट्रैफिक में आपको हीटिंग इशूज़ आएंगे। ऑफ रोडिंग की बात करें तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, ऑब्वियसली BS6 कंप्लाइंट है, इंजन काफ़ी ज़्यादा मेलो है, उतना ज़्यादा क्रेजी नहीं है। सेकेंड और थर्ड ईयर में चलाते हो तो आपको नॉकिंग साउंड मिलेगा ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज इस बाइक की जो लो एंड टॉर्क है वो इस बाइक में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। एंड उसकी वजह से क्या होता है, जब आप सिटीज़ में चलाते हो तो आपको बार बार जो है गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एनोइंग लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप थर्ड गियर पे चला रहे हो लो RPM पे तो आपको नॉकिंग साउंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप ट्रिपल डिजिट्स में क्रूज़ कर रहे हो अराउंड 120 to 140 किलोमीटर्स पर आवर तो आपको वाइब्रेशंस हल्के हल्के फील होंगे, बट अराउंड 110-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर आप क्रूज़ करते हो इस बाइक को तो आपको बिल्कुल वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाले हैं। अगर आप अराउंड 7,000 to 8,000 RPM पे क्रूज़ कर रहे हो तो आपको फुट पैक्स पे और हल्का आपको मिरर्स पे एंड हैंडल पे आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। वाइब्रेशंस कहीं कहीं से यहाँ से भी आते हैं, बट जस्ट बिकॉज ये सब प्लास्टिक पार्ट है तो नट लूज होने की वजह से वाइब्रेशंस आते हैं। सो अदर देन दैट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बाइक है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है जो इस सेगमेंट में आपको मिलती है, एंड जो इसके कॉम्पिटिटर्स है उन सब बाइक से। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हो इस बाइक पे तो आपको इस बाइक से प्यार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है ये बाइक। सच कहूँ तो अगर मुझे मोटरसाइकिल लेनी पड़ी और मेरा बजट अगर अराउंड 4 lakhs हो तो मैं ये बाइक डेफिनेटली लेना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें हैं विच आई हैव पर्सनली फेस्ड ड्यूरिंग माई लद्दाख राइड, एंड सेम अभिनव ने भी वही सेम चीज़ फील करा है इस बाइक पे। सुबह की अगर याद आए मुझे तो जब चैन रियूव करना पड़ता था अराउंड 500 किलोमीटर्स के बाद, तो डबल स्टैंड की कमी मुझे बहुत ज़्यादा खलती थी इस बाइक पे। अगर डबल स्टैंड होता तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता। डबल स्टैंड एज एन एक्सेसरीज पार्ट लगाते हो तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 5 mm के आसपास कम हो जाएगा। ऑफ रोड कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है इस बाइक पे, लेकिन अगर आप रफ पैसेज पे चला रहे हो, बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हो, वाटर क्रॉसिंग्स कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन एंगल पे अगर बाइक को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इस बाइक को फील होगी, जस्ट बिकॉज द लो एंड टॉर्क ऑफ दिस बाइक बहुत ज़्यादा कम है। लो एंड टॉर्क, थोड़ा सा लो एंड टॉर्क पे अगर कंपनी ने काम किया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। द सेकेंड पॉइंट विच आई हैव फेस्ड ऑन दिस बाइक इन माई लद्दाख राइड, बस नाम का इसने इतने सारे LED दे रखे हैं, काम का उतना नहीं है, आपको उतना अच्छा थ्रो नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा लाइट लगाते हो तो आपको हेल्प मिलेगा हाईवेज पे, बट हाईवे पे ये लाइट जो है इसकी थ्रो उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। द थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली द सीट हाइट। अगर सीट हाइट थोड़ी कम होती तो जो 5.5 इंच के जो लोग हैं वो इस बाइक को कंसिडर करना ज़रूर चाहते, जस्ट बिकॉज द प्राइस रेंज एंड द फीचर्स विच आर ऑफर्ड ऑन दिस बाइक। एंड वन मोर थिंग जो अभिनव ने फेस करी है लद्दाख राइड में, विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ दिस बाइक। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली, वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लद्दाख राइड में वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के टाइम में TFT का जो सेंसर है वो ख़राब हो गया था, एंड उस वक्त मुझे लगती है बहुत कम चली हुई थी बाइक, अराउंड 4000 किलोमीटर चली हुई थी, तो ये दिक्कतें आई थी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में। अगर आपको और कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती हैं इस बाइक में क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसर्स है तो आपको महंगा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। एंड इसके पार्ट जो हैं बहुत ज़्यादा आपको फाइबर प्लास्टिक्स मिलने वाले हैं यहाँ पे केयरफुल होकर चलाना पड़ेगा, अगर गिरी तो दिक्कत हो सकती है। एंड एक और चीज़ की कमी मुझे खली इस बाइक पे, विच इज़ द माउंटिंग ऑप्शन। लगेज माउंटिंग ऑप्शंस आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आप आफ्टर मार्केट भी लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज मॉडिफिकेशंस करने पड़ जाएंगे आपको, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कंसीडरिंग द फैक्ट दिस इज़ एन ऑफ रोड बाइक, अगर आपको स्पोक्स एंड 21 इंच के व्हील मिलते तो काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस आपका होता। और काफ़ी ज़्यादा ऊँची है ये बाइक,
तो आपको अपराइट पोजीशन मिलता है, विच इज़ द शोल्डर, एल्बो एंड द रिस्ट विच गोज इन द सेम लाइन। हल्का सा कर्व होना चाहिए लाइक दिस, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। आपका फुट पैक पोजीशन है बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा आपको एग्रेसिव पोजीशन मिलता है इस बाइक पे, जस्ट बिकॉज आपका जो हैंडल जो पोजीशन है हैंडल का वो थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ है। इसके जो विंड सिल है वो अगर आप टॉल राइडर हो तो आपको उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं करेगा विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए। अगर इसमें वाइजर एक्सटेंडर लगाया जाए तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, आफ्टर मार्केट आप लगा सकते। अगर इस बाइक पे आप सैडलिंग करते हो, मेरे लिए इस बाइक पे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हैंडल बार जो है इसका काफ़ी ज़्यादा नीचे है, डाउन साइड की तरफ है। अगर हैंडल बार एक्सटेंडर लगा दिया जाए इस बाइक में तो काफ़ी अच्छा होगा। जो इंसान 6 फुट लंबे हैं उनके लिए सैडलिंग करने के लिए। तो अभी तो ठंड है तो उसकी वजह से पैरों में उतने ज़्यादा हीट महसूस नहीं होगा हमें, बट गर्मी में जब आप सीरीज ट्रैफिक में जाते हो, जैसे ही आप 2 से 3 किलोमीटर चलाते हो तो ये बाइक हीट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी चलते हैं घर, क्योंकि GoPro ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुका है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि बाइक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी अब। या दिस इज़ इट, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक वीडियोस में। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, हम भी ख्याल रखते हैं, और राइड सेफ विथ सेफ्टी गियर्स ऑफ कोर्स। बाय बाय।